class, subject English grammar. In previous videos we are telling you about the competitive exams, but now we are going to start with the revision work of English grammar, and our first chapter is related to the articles and determinants. I am Jyoti Chaudhary, your English in charge, and this video is related to 17th July 2020. Now first chapter is articles and determiners. Now I will tell you about the definition of determiners. What are determiners? Determiners are words which identify or specify a noun or a pronoun in some way. It means हमें ये बताते हैं जो words हैं हमारे पास determiners के determiners like for an example a, and, the, this, that, my, your or some, many, they are the examples of determiners. For example, some chocolates are lying on the table. So, some is the determiners which is used in front of the nouns. जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं डिटर्मिनर्स के, वो हमारे नाउन और प्रोनाउन से जो पहले वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, जो हमें ये स्पेसिफाई करते हैं कि वो जो चॉकलेट्स हैं या हमारे पास जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कैसे हैं. Some is the determiner of example of determiners, and likewise I will tell you about the kinds of determiners. But I will a and the, this, that, many, few, they are the examples of determiners. But I will tell you they are of different categories. They are according to the different categories. Now I will tell you the one by one which is related to which kinds of determiners. Now first of all I will tell you about the articles. What are articles? Now I will first is kind is articles. Articles क्या होते हैं? Articles is examples are a and the. In front of noun or a pronoun we are using these words. They are a or an. ये दो words they are called indefinite. Indefinite articles, and the is definite. The is definite article. They are of two categories. They are under the categories of articles. Articles के दो parts होते हैं, indefinite and definite. A हम कब use करते हैं? A is used with the alphabets like consonant alphabets. They are 26 alphabets in the A to Z. We can say 26 alphabets होते हैं. उसमें से 5 alphabets ऐसे होते हैं जो vowel sound words होते हैं. Vowel sound words होते हैं A, E, I, O, U. They are 5 words. Rest of the 25 alphabets. 21 out of 26, 5 ये हो गए और 21 alphabets are of consonant. Consonant alphabets. So vowel sound words, vowel sound आनी चाहिए. हम इन्हें स्वर, हिंदी में स्वर भी बोलते हैं. जब हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे या किसी वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे तो अगर हमें इन 5 वर्ड्स की, इन वोवल साउंड वर्ड्स की अगर हमें आवाज़ आएगी, ध्वनि आएगी, तब उन्हें हम उनके आगे प्लेस करेंगे एंड. अगर फॉर एन एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी पुट हो रहा है यू वर्ड आ रहा है हमारे पास, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के आगे हमारे पास वोवल वर्ड है यू, बट वर्ड हमारे पास यू है बट साउंड किसकी आ रही है? य. और य क्या होता है? व्यंजन. और व्यंजन हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें इसमें वर्ड्स किसकी साउंड की वर्ड्स चाहिए? स्वर. अगर हमारे पास वोवल साउंड की वर्ड्स की आवाज़ आ रही है, उन्हें हम
otherwise we will put a, we will use a or the. इन दो वर्ड्स का यूज करेंगे. Now I will tell you about the a in rest of the alphabets. Twin is honesty. Now I will give you an example of honesty. Honest or honesty you can say. इसमें h वर्ड से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, बट इसमें साउंड किसकी आ रही है? वोवल की, व्यंजन की आ रही है, ओ. ओ की आवाज आ रही है क्योंकि इसमें h जो है हमारे पास साइलेंट है. देन वी विल पुट एन. अगर इसमें हम क्या यूज करेंगे? एन. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द. हाउ वी आर गोइंग टू यूज द. In articles, the is used in front of the noun or a pronoun, but according to the words. For an example, noun क्या होता है? Particular name, place, animal. किसी भी particular चीज का अगर हमें नाम given है, then we are going to use the. Name of a person, place, river, historic place, monuments, etc. किसी भी चीज का अगर हमें नेम गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेम. अगर हमें नेम गिवन है, then we will use the. This is the difference in between a and the. A or an are indefinite articles and the is definite articles, and the is used in front of the name of a person, place, river, historic place, monuments. किसी भी चीज का अगर हमें पर्टिकुलर नेम गिवन है तो उन्हें हम we will use the in front of the noun or a pronoun. Now I will tell you about the demonstrative. Next point is demonstrative. Demonstrative examples are this, that, these, those. In demonstrative we are going to use only 4 words: this, that, these and those. See, this is used with only singular noun or a pronoun. जब हम किसी भी सिंगुलर या प्लूरल सिंगुलर नाउन और अ प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन होंगे तो उनको हम यूज करेंगे दिस. इसी के साथ दैट, एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड विद नियर बाय थिंग्स, जो हमारे आसपास चीजें रखी हुई हैं. नियर बाय थिंग्स, नियर बाय थिंग्स के साथ हम यूज करेंगे दिस. दिस लाइक ऐसे ही हम दैट का यूज करेंगे. दैट इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन बट विद फार अवे थिंग्स. फार अवे थिंग्स, इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है. यूज्ड हम दोनों को सिंगुलर के लिए ही यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ ही यूज करेंगे. बट दिस इज यूज्ड बाय नियर बाय थिंग्स, दैट इज यूज्ड विद फार अवे थिंग्स. जो पास चीजें रखी हुई हैं उनके साथ हम दिस यूज करेंगे, और दैट हम यूज करेंगे जो हमारे हमसे जो दूर रखी हुई है. दैट जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कराते हैं, दैट टेबल, दैट अलमीरा और दैट कबर्ड ऐसे बोलते हैं. दिस इज यूज्ड विद दिस इज अ बॉय, दिस इज अ ट्री. जो हमारे पास चीजें रखी हुई हैं उनके लिए यूज करेंगे. लाइक दिस वी हैव दीज एंड दोज. दीज और दोज को कैसे यूज करेंगे हम? These and those is used with plural things. Plural things के साथ यूज करेंगे हम these and those. दोनों चीजें plural things के साथ यूज होंगी, but these हम यूज करेंगे near by things. जो हमारे पास near by things है, क्योंकि ये this का plural है हमारे पास. ये हमारा किसका प्लूरल है? दिस वर्ड्स का यूज करेंगे प्लूरल के. दोस दैट का प्लूरल है तो इसके साथ यूज करेंगे हम जो फार अवे थिंग्स होंगी. जो फार अवे थिंग्स होंगी उनके साथ यूज करेंगे दोस. Easily you can
identify, how we will use this, that, these and those. Here nearby things, this is a boy, this is a boy. तो इसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज बताई हुई है नियर बाय थिंग्स, तो आप इजीली पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे दिस आएगा या डैट आएगा। अगर मैं कह देती हूँ बॉयज आर बॉयज और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया डैश, तो डैश आर बॉयज, इसमें प्लूरल गिवन है आपको, तो इसमें आप क्या पुट करेंगे, दीज आर द बॉयज, लाइक दिस। ऐसे ही हम दैट का यूज करेंगे। अगर मैं बताती हूँ आपको डैश इज अ टेबल, टेबल अगर हमसे दूर है, थोड़ा सा दूर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट इज अ टेबल। ऐसे ही अगर हम डैश आर टेबल्स, टेबल्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल, दैट का क्या है हमारे पास, दोस हम दैट के प्लेस पे यूज करेंगे एज अ प्लेस ऑफ प्लूरल्स। टेबल्स हमारे पास प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव का। अगर हमारे पास सिंगुलर टेबल है, सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे दैट। अगर हमारे पास प्लूरल है तो हम यूज करेंगे दोस। ऐसे ही हमने यहाँ पे दिस और दैट, दिस और दीज का यूज किया हुआ है, ऐसे ही हम दैट और दीज का यूज करेंगे। सो दिस इज आवर टॉपिक demonstrative, and only 4 words we are going to use.